अस्सलामुअलैकुम, मुझे फसी खान कहते हैं। मैं यूट्यूब की चैनल फसी दुबई के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ और मैं प्रोटेक्टर इमिग्रेंट्स ऑफिस में हूँ पेशावर। हिशाम बाइक निकाल रहे हैं क्योंकि इतनी तंग गली है कि अगर बाइक पे ट्रैवल ना करो तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। और ये है ये ऑफिस, ठीक है। तो मैं ये चालान जो है ये UBL में और नेशनल बैंक में डिपॉजिट करके वापस यहाँ आऊँगा। भाई 2 मिनट भी नहीं लगे, ठीक है। और मेरा डिपॉज़िट हो गया है UBL में। तो जो पहला बैंक है जहाँ पे आपने डिपॉज़िट करना है। हिशाम की हालत ज़्यादा बिगड़ी हुई होगी क्योंकि वो बाइक चला रहा है और ये UBL बैंक। तो जब मैं नेशनल में डिपॉज़िट करता हूँ तब एक और क्लिप बनाते हैं। 100 के लिए I'm really excited because see this much people are here, some on my back side, and I have received this thing in my hand now. It's here. See, it's here. So done. Protector is done. I reached here 9:30 and it's now almost 12:15 and something like that. So मेरा काम 2.5 से 3 घंटे में हो गया। I'm super excited. Alhamdulillah, I have finally done my protector, and I'm excited that I have done it by myself. So I'll share some further details with you people later. I'll just stop it. I'm leaving from the office. On my back, you people can see. Big shout out to Hisham. He really helped me out in this whole process, and it was not possible without his help. Thanks to all these people. Mehrbani, bahut shukriya. Thank you. And mission accomplished. So this is Protector of Immigrants and University Town. Canal Road, University Town. Yeah. I'll stop this clip here. So this is the area. So if you people will come and you don't know about, same as me, because I didn't know about this place. So this is the area. It's not for all the people. It's for all the people who are related or who are near to this area, Peshawar. As I mentioned, my work is done. I really appreciate their efforts. She is Mahpara, and she wants to come to UAE on visit visa. I promised her that as much as we can, Fasi Dubai family can, we will help you inshallah. And I'm sure if you don't have any problem, I'll mention your Facebook link in description of this video. Is it okay? Yeah. So you can add her and you can tell her any vacancies related to her field. अब वो कहेगी so seriously. या ऐसा नहीं कि हैंकी पैंकी करो भाई किसी से बात करने के लिए, या वैसे ही she is really looking, she is really looking for a job in Dubai, UAE. So आप ज़रा बताएं आपकी फील्ड कौन सी और आप किस फील्ड में जॉब्स ढूंढ रही हैं? मैं I'm a banker basically here. I am MBA HR and I want to I'm serving here already as a customer services, customer on front desk. So I want a job in customer relationship care or customer फ्रंट डेस्क का इस तरह का कुछ भी जॉब हो or HR related administration, as I don't have any experience in administration, but I need the job over there. Exactly. So And this is I'm really very seriously looking for a job. by heartily Inshallah. want to serve Dubai. Yeah, inshallah. I'm really glad. I'm really happy. I cannot explain my feelings because मुझे काफ़ी लोगों ने कहा इस प्रोटेक्टर लगवाना इज़ अ वेरी टफ थिंग, बट माई एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड। हम जैसे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, अपना काम खुद नहीं करेंगे, एजेंट्स के थ्रू कराएंगे तो कंपनी मुल्क कभी ठीक नहीं होगा। सेकंड थिंग, अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू व्हाट शी इज़ लुकिंग फॉर, जस्ट शेयर इट। इन्होंने पेज भी लाइक किया है। अगर आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, हाउ टू फाइंड अ जॉब इन दुबई का जो पेज है वहाँ पे वो करें, पोस्ट करें, मुझे इनबॉक्स करें रिलेटेड टू जॉब फॉर हर, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज शी इज़ कमिंग इन जनवरी और February, most. So thumbs up for her, and yes, and I wish her a very good luck, and I expect the same level of motivation and support from you people. So I'll stop it here and I'll try to
covered the other guy who also helped me here, and that's it for the time. Yes. Yes, Thank bye. you. Bye. Take care. So, I welcome Furkan. He's the guy who really helped me, and I know that he has a very good PR in this area. Furkan is also looking for a job in UAE, in Dubai. So, Fasi Dubai the family is for all those people who are connecting each other and who are helping each other. Furkan, a very big thank you from my side, the way you helped me. See, someone is calling or something is that. So, anyway. फुरकान, आप मेंशन करें आपकी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या I'm है? a civil engineer, Mhm. and I want and I'm doing also MS Mhm. in structural engineering. Structural engineering, Because around about 18 years, 18 months. 18 months. I have an experience of 18 months in Mhm. civil engineering. In civil engineering and, field. Yeah. Okay. So I want Mhm. switching my Mhm. job Mhm. because it's not relevant with my studies. Mhm. So Mhm. that's why I'm Mhm. going to. Inshallah. You are going to pursue your career in Yeah, UAE as in well. UAE. So when is your plan to visit UAE? Any plan? Or any idea? Next year, inshallah. In Inshallah, next year. 2017. Okay. So guys, I really need a big support from you people, not in terms of money, just in terms of jobs availability. And you know that what we are doing is just to connect people and just to help people. We don't need money, you don't need money, but we need such kind of people to serve UAE as well. He's really an absolute guy. He has a very good PR. It's not like that he referred me to somewhere. He actually guided me with the right way, that how you need to do that work. So, and I know his work. I would love the support from you people side. If you people would share, I would share his Facebook link in the description of this video. Yeah. Anything else, Furkan, you want to share in the video? Thank you so much. That's it for the time. And me and Hisham will go. And Furkan, just Okay. thank you. Bye. Take care. Alhamdulillah. Finally, protector is done, and I'm here with Hisham in Hisham's home, his room, and मैंने कुछ पिन आउट किया. ये प्रोटेक्टर होता है भाई, ये पूरी स्टोरी है. ठीक है, ये स्टैम्प लगती है और साथ में इंश्योरेंस होती है. ठीक है शाम, आपको आज का दिन कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा. सीरियस बताएं, जो एक्सपीरियंस किया. मुझे असल में हम कितने डरे रहते हैं, सीधी सी बात. बिल्कुल वही. तो मुझे भी नहीं पता था कि यानी कैसे हम फेस करेंगे, यानी क्या होता है. He is really brave guy, because at least I was having some idea. He was like totally blank, but he really trusted me कि फंसी कह रहा तो it means there would be something. See, we need this kind of spirit and this kind of relationship and this kind of attitude with each other. If you don't know anything and if someone is saying that we can do this thing, Aisham कहता नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता और agents के through कराते, because even he was not aware about that. Even before that I was not aware. When you people asked me that how to do protector, and then I searched something. Anyway, I'll come to कि क्या क्या requirements होते हैं, so that जब आप कराएं, अगर खुद कराना चाहें. See, मेरा लगा 6500 में, उसकी क्लासिफिकेशन भी देता हूँ कि क्या क्या कहाँ पे लगा है. और अगर आप एजेंट के थ्रू कराएंगे तो वो एटलीस्ट 8000 लेंगे. 8000. ठीक है. मैंने जब पूछा था बाहर अपनी सिटी से तो उन्होंने कहा 9500 मैं लूँगा, तो 3000 का डिफरेंस है. ठीक है, आप एजुकेटेड हैं, आपके एजुकेटेड किसी भी काम की नहीं, एजुकेशन किसी भी काम की नहीं, अगर आप अपना काम खुद नहीं कर सकते. क्योंकि शाम ऐसी बात है ना, पैसों की बात नहीं होती, काम की बात होती है और अवेयरनेस की बात होती है. कि जब हम एजुकेटेड तबका ही इतना अनअवेयर है चीज़ों से रिलेटेड, तो बाकी लोगों का क्या सिचुएशन होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो, उसमें पहली चीज़ आती है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, फिर टिकट, आपने टिकट कराई हुई हो, पासपोर्ट, इंग्लिश कार्ड जो ओवरसीज़ कार्ड जिसको बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और आपका जिसको आप नॉमिनेट करते हो इंश्योरेंस के लिए उसका आपके पास कार्ड होना चाहिए, CNIC उसका नेशनल कार्ड होना चाहिए. फिर आपको क्या कराना, प्रोसेस में क्या क्या होता है, आपको 2 फॉर्म्स फिल करने होते हैं इंश्योरेंस के लिए और 2 फॉर्म्स फिल करने होते हैं प्रोटेक्टर लगवाने के लिए, जो इसमें लगता है स्टैम्प, उसके लिए. और आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो वीज़ा है, पासपोर्ट है, उन सब की 2 फोटो कॉपीज आपके पास होनी चाहिए जब आप जा रहे हो. ठीक है. और फिर आप पैसे जब ये आप कर लोगे तो सबसे पहला स्टेप आता है, उसमें आप बैंक में डिपॉजिट करते हो. फिर आप आते हो जब दोनों बैंक्स में डिपॉजिट हो जाती है. जैसे पिशावर में, आई डोंट नो कि किसी और सिटी में क्या होगा हिशाम, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये कि UBL और नेशनल बैंक में आप डिपॉजिट करते हो. तो जब ये डिपॉजिट हो जाता है, आप वापस आते हो उस ऑफिस में, वहाँ पे आप इंश्योरेंस वाले बंदे को मिलते हो, जो इंश्योरेंस के आपने 2 फॉर्म्स फिल किए होते हैं,
उसके साथ आप वो उनको चालान दिखाते हो कि यार ये मैं डिपॉजिट कर चुका हूँ बैंक में, वो आपसे पैसे लेते हैं और वो आपका इंश्योरेंस वाला फॉर्म फिल कर लेते हैं। जब इंश्योरेंस का फॉर्म हो जाता है, इंश्योरेंस की पेमेंट हो जाती है, देन आपका पूरा प्रोफाइल और पूरा केस बन जाता है और वो आपके जो फाइनल जहाँ से प्रोटेक्टर लगता है, जो इनका बड़ा बैठता है, आई डोंट नो कि उसकी क्या सीट है, लेकिन वो आपको करा के देता है और देन आपका काम हो जाता है। अब जो UBL में जो पैसे डिपॉजिट कराने होते हैं वो होते हैं 2000, वो आपकी है ओवरसीज़ फंड, ठीक है। अब ये किस लिए होता है ये आई डोंट नो, लेकिन इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है, वो मैं आपको बताता हूँ। और जो नेशनल बैंक में आप कराते हो वो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी ओवरसीज़ डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड होने के लिए, वो है 2500, और जो आप इंश्योरेंस देते हो वो है 2000, और उस जिसके लिए आपको फिर किसी का कार्ड भी चाहिए था, जो आपका भाई हो सकता है, माँ हो सकती है, अबू हो सकता है, वाइफ हो सकती है और बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, आप 2000 डिपॉजिट कराते हो और ये 2 ईयर्स के लिए होता है। अगर इन केस अल्लाह ना करे अगर आपकी डेथ होती है 2 ईयर्स में, तो आपकी फैमिली को, जिसको आपने नॉमिनेट किया होता है, उसको 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ मिलते हैं। जो इंडिया में देख रहा है वो उनका अपने हिसाब से होगा, लेकिन प्रोसेस ऐसा ही होता है। और जब तक आपने बैंक में पैसे नहीं डिपॉजिट किए होंगे, जो आपके इंश्योरेंस वाले वो आपसे पैसे नहीं लेते हैं, ये प्रोसेस ही ऐसा है, ठीक है। बाहर बंदे बैठे होते हैं, वो आपको कहते हैं, जब आप अभी ऑफिस में घुसे नहीं होते, वो कहते हैं प्रोटेक्टर, तो आपको लगता है यही लोग हैं जिनसे प्रोटेक्टर लगवाना है, जबकि जो प्रोटेक्टर लगवाने वाले हैं वो अंदर ऑफिस में बैठे होते हैं, बाहर एजेंट्स बैठे होते हैं। तो ये कभी कभी पैसे भी ज़्यादा ले लेते हैं और अंदर के बंदों से ये भी पता चला है कि कभी कभी पैसे खा के भी भाग जाते हैं। क्यों, आपका क्या पता, आपने उससे कोई ID कार्ड कुछ नहीं लिया हुआ। हिशाम, आप कुछ ऐड करोगे या फिर ब्लॉग को वाइंड अप करें? आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या चाहते हो, किस तरह से इंटरेक्शन, क्योंकि आपको भी माशाल्लाह काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है UAE का। माशाल्लाह फिर से आप प्लान कर रहे हैं, जब से हम मिले हैं कल से, कि ये फिर से विज़िट करना चाह रहे हैं कि वो जाए, ठीक है। तो क्या आप क्या कहोगे? मेरे तो यही है कि हर कोई यानी ज़्यादातर मैंने तो ये कॉन्सेप्ट देखा है ना पेशावर में, पाकिस्तान में, यही है कि ज़्यादातर लोग आपके पास आ जाएंगे, बोले कि मुझे पैसे दो मैं कर लूँगा। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इंसान को खुद ही जाना चाहिए, देखे यार दुनिया देखे आगे क्या होता है, क्या काम है, खुद कोशिश करेगा वो, एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल वही, फिर आगे भी लोगों तक यानी ये भी दिया है कि माशाल्लाह लीडर हैं अपने एरिया के, माशाल्लाह करते धरते बंदे हैं, बहुत ही हम्बल बंदे हैं, मुझे बहुत अच्छा, और बहुत ही यंग है माशाल्लाह, मेरे से 3-1 साल छोटे हैं, मेरे से माशाल्लाह पर्सनैलिटी वाइज ज़रा सीनियर लग रहे हैं, लेकिन मेरे से 3-4 साल छोटे हैं। आपको हिसाब से कुछ पूछना है? मैंने कल वाले ब्लॉग में उसका भी ऐड नहीं किया, बिकॉज मैंने लैपटॉप अभी तक यूज़ नहीं किया, बिकॉज मैं एक प्रोसेस में था। मैं जब जाऊँगा एक जगह पे बैठूँगा, या जब मैं UAE चला जाऊँगा, तो मैं जो आज के ब्लॉग में भी जिनका मैंने मेंशन किया उनकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेसेस दूंगा और फेसबुक लिंक्स दूंगा, हिशाम को भी दूंगा। हिशाम आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकता है और इसके थ्रू भी आप कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।